پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معلم پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ضرورت کے وقت اپنے بھائی کی مدد کی، اللہ اس کی ضرورت کے وقت مدد کرے گا۔ پیارے بچوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اپنے دوستوں، سہیلیوں یا رشتہ داروں میں اگر کوئی مصیبت میں ہے یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ اس بندے کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کو برا بھی نہ لگے، اور مدد کرنے کے بعد یہ بھی خیال رکھیں کہ بار بار اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی، اس سے وہ شرمندہ ہو سکتے ہیں۔ نبیہہ، ہم اپنے دوستوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہادیہ، اگر اسکول میں کسی دوست کی کوئی چیز گم جائے تو ہم اس کو وہ چیز دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ٹیچر کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم بچوں میں کاپیاں بانٹ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی دوست کو بریک میں کھیلتے ہوئے چوٹ لگ جائے تو اس کو مرہم پٹی کے لیے نرس کے پاس لے کر جانے میں بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر امی کی مدد کر سکتے ہیں، اور مدد کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ ہم سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے پڑھو اور آگے بڑھو۔ پڑھو اور آگے بڑھو میں مس طاہرہ ناصر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جو ہے گپ شپ۔ جی جناب، سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خوش باش اور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں تک سوال ہے میرا تو آج میں کچھ اداس سی ہوں۔ میں نے سوچا آپ سے اپنی اداسی شیئر کروں اور وہ مسئلہ بھی بتاؤں جس نے مجھے اداس اور پریشان دونوں کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی حل بتا سکیں۔ اچھا بھائی، ہوا یوں کہ میں آج گھر سے باہر کسی کام سے نکلی۔ مجھے قریب ہی بازار سے کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھیں، اس لیے میں پیدل ہی روانہ ہو گئی۔ مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک بڑی سڑک پار کرنی تھی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی کیونکہ سگنل یعنی اشارہ کھلا ہوا تھا اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں سگنل کی لال بتی جلنے کا انتظار کرنے لگی۔ سڑک پر زیبرا کراسنگ بھی بنی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک کہا، سڑک پہ جہاں بھی زیبرے کی طرح سفید اور کالی دھاریوں سے پینٹ کیا ہوا ہو اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ سڑک کو پیدل پار کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ زیبرے کی طرح اپنی دھاری دار شکل کی وجہ سے اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کا اصول ہے اگر سگنل یا اشارہ بند ہو اور کوئی شخص زیبرا کراسنگ پر سڑک پار کر رہا ہو تو کوئی بھی گاڑی ہو وہ فوراً رک جائے گی، اور جب تک وہ شخص راستہ پار نہ کر لے اسے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ میرے ساتھ کئی دوسرے لوگوں کے علاوہ ایک بوڑھے سے انکل بھی تھے جن کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ میں نے ان سے سامان لے لیا تاکہ انہیں سڑک پار کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ جیسے ہی سگنل بند ہوا ہم سب پیدل چلنے والے زیبرا کراسنگ پر آ کر سڑک پار کرنے لگے۔ اچانک کہیں سے ایک موٹر سائیکل والا سگنل توڑتا ہوا تیزی سے آیا اور ان بوڑھے انکل سے زور سے ٹکرا گیا۔ انکل زمین پہ گر گئے، موٹر سائیکل والا بھی بڑی زور سے گرا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کے انکل کو اٹھایا۔ کافی مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ شکر ہے انہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن موٹر سائیکل والے کے سر سے خون بہہ رہا تھا کیونکہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا۔ پھر دوسرا، اس نے سگنل توڑ کے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ موٹر سائیکل چلاتے وقت موبائل استعمال کر رہا تھا، جو کہ بے حد خطرناک ہے۔ سب موٹر سائیکل والے کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس کی لاپرواہی سے نہ صرف اس کی جان کو خطرہ تھا بلکہ سڑک پہ چلنے والے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ ایک شخص فوراً اسے قریبی اسپتال مرہم پٹی کے لیے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجمع چھٹ گیا، لیکن مجھے بہت برا لگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں گاڑی چلاتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک، ایک تو یہ کہ آپ کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی کہ اگر سگنل پہ لائٹ ریڈ ہو تو آپ کو اپنی گاڑی ہر حال میں روکنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے گھر کا کوئی بڑا موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو اسے ہیلمٹ لازمی پہننا چاہیے۔
बिल्कुल सही। और पैदल चलने वालों का खास ख्याल रखना चाहिए, चाहे सिग्नल बंद हो या खुला हुआ हो। अगर आप अपनी गाड़ी में ये देख लें कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है या सड़क पार कर रहा है तो आपको अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए। और वैसे भी तेज रफ्तारी जो है वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हम बड़े बड़े हादसात से बच सकते हैं। ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू है मुतशाबे अल्फाज या हम आवाज़ अल्फाज। गौर से सुनिए, मुतशाबे अल्फाज या हम आवाज़ अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो आवाज़ या इमला के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भाई देखिए ना, हम रोज़ाना सुबह से शाम तक कितनी बातें करते हैं, उसमें बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कई अल्फाज ऐसे होते हैं कि जब उन्हें हम अदा करते हैं तो जुमले के लिहाज से हम उस लफ्ज़ के मायने समझ जाते हैं। सबसे पहले हम उन अल्फाज की मशक करते हैं जो सुनने में एक सी आवाज़ रखते हैं लेकिन उनका इमला या हिज्जे मुख्तलिफ होते हैं। इस मिसाल से समझते हैं, मुझे आम पसंद है। अब एक और जुमला सुने। अपने अब्बू से रोज कहानी सुनना उसके लिए एक आम सी बात थी। आपने दोनों जुमले सुने। ये बताइए कि इन दोनों जुमलों में से कौन सा लफ्ज ऐसा था जो सुनने में यानी आवाज के लिहाज से आपको एक जैसा लगा? बिल्कुल ठीक, आम। पहले जुमले में कहा गया मुझे आम पसंद है, तो ये फल आम की बात हो रही है। और जरा इसके हिज्जे तो लिखें और बताइए कि क्या हिज्जे लिखे आपने। अलिफ मद और मीम, जबरदस्त। दूसरा जुमला फिर सुनते हैं। अपने अब्बू से रोज कहानी सुनना उसके लिए एक आम सी बात थी। आम सी बात यानी मामूली बात, रूटीन की बात। अब इस आम की क्या हिज्जे हैं, कौन बताएगा? आइन, अलिफ और आम, बिल्कुल ठीक। देखिए, इसी तरह उर्दू जबान में कई अल्फाज ऐसे हैं जो अपने तलफ़ुज़ यानी अदायगी में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मायने और हिज्जे मुख्तलिफ होते हैं। चलिए थोड़ी और मशक करते हैं, लेकिन आप कॉपी और पेंसिल साथ रखकर बैठें और गौर से सुनें। मैं 2 जुमले कहूँगी, आपने उसमें से हम आवाज़ या मुतशाबे लफ्ज़ तलाश करके लिखना है। बल्कि चलिए ऐसा करते हैं, आपके आसानी के लिए मैं वो लफ्ज़ बता दूंगी लेकिन आप उसे लिखेंगे और उसके मायने पे गौर करेंगे। चलिए सुनिए और लिखिए। पहला जुमला है, किसान खेत में हल चला रहा था। आपने लिखना है हल। नंबर 2, इस मसले का कोई हल बताएं। ठीक है, यहाँ भी हल मौजूद है, वहां पे भी हल मौजूद है। अब आपको ये देखना है कि दोनों के स्पेलिंग में क्या फर्क है। आवाज तो एक जैसी है। अगला जुमला सुने। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है। और उसके साथ जुमला मैं जो बता रही हूँ, मेरा दोस्त बहुत काबिल है, वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है। तो यहाँ पर आपने लफ्ज काबुल लिखना है और काबिल लिखना है। अगला जुमला सुने। शिकारी के पास एक खूबसूरत बाज है। बाज एक परिंदा, ठीक है, यहाँ पर आपने लफ्ज बाज लिखना है। और इसी के साथ मुतशाबे लफ्ज का एक और जुमला सुने। बाज बच्चे अपने हाथों को अच्छी तरह नहीं धोते। ठीक है, ऑलराइट। अब हम आगे चलते हैं। पहले जुमले में आपने कौन सा हम आवाज लफ्ज लिखा था? हल। शाबाश। इसके क्या मायने हैं? खेत में फसल उगाने का औजार। और जो दूसरा लफ्ज जुमला है, मसले का कोई हल बताएं। बिल्कुल ठीक है, किसी मुश्किल काम को आसान करने का तरीका। भाई क्या बात है आप लोगों की। अच्छा, दूसरे जुमले में कौन से 2 अल्फाज मुतशाबे या हम आवाज हैं? काबुल और काबिल। काबुल एक शहर का नाम है, जबकि काबिल किसी की काबिलियत या सलाहियत को कहते हैं। यहाँ एक बात नोट करें, काबुल में बे के ऊपर पेश है और काबिल में बे के नीचे जेर है। जी, अगला लफ्ज क्या था आपका? बाज। बाज क्या है? बाज एक परिंदे का नाम है। उसके हिज्जे क्या है? बे, अलिफ और जे। जबकि दूसरे बाज का मतलब है कुछ, यानी बाज लोग, बाज अफराद, बाज बच्चे वगैरह। शाबाश, वेरी गुड। चलिए जनाब, हम अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो है बूझो तो जाने। मैं आपको छोटा सा टेस्ट लूंगी, आपको चंद मुतशाबे अल्फाज दूंगी जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। रूल्स याद रखें, इन अल्फाज के हिज्जे मुख्तलिफ होंगे लेकिन आवाज एक जैसी होगी। नंबर 2, इनके मायने मुख्तलिफ होंगे। चलिए पहला लफ्ज लिखिए, सदा। हिज्जे में बता रही हूँ आपको, स्वाद, दाल और अलिफ। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब इसका हम आवाज लफ्ज लिखिए, सदा, सीन के साथ, सीन, दाल और अलिफ। ठीक है। अगला लफ्ज लिखिए, हाल। हे यानी जो जीम की फैमिली का हे होता है, हे, अलिफ और लाम। और इसका हम आवाज लफ्ज लिखिए, हॉल।
गोल वाली है अलिफ और लाम। चलिए जनाब, मैं 10 तक गिनती गिन रही हूँ और आपने जल्दी से मुझे इसका जुमला बताना है। सबने एक एक जुमला बनाना है। मेरे ख्याल में 10 तक गिनती में हर एक जुमला बना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। चलिए जी, पहला लफ्ज है सदा और इसका मतलब है आवाज। आपका जुमला क्या है? आपने लिखा अब्बू ने मुझे सदा दी कि खाना खा लो। शाबाश, बहुत अच्छा। यानी अब्बू ने मुझे आवाज दी कि खाना खा लो। अब इसका हम आवाज लफ्ज देखती है, दूसरा जो सदा है और सीन से शुरू हो रहा है, इसके मायने बताइए। अच्छा, आपको नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब है हमेशा। तो इसका जुमला है, अच्छा आपने जुमला लिखा है, ओके, मैंने सुना नहीं। अल्लाह पाकिस्तान की सदा हिफाजत करे। अरे वाह, ये तो जुमला मैं अपने हर एपिसोड की लास्ट में बोलती हूँ। शाबाश, आपको तो याद रह गया। बहुत अच्छा जुमला बनाया। अच्छा, हाल का क्या जुमला बनाया आपने? पहले मतलब बताएं। बिल्कुल ठीक है, हाल का मतलब है हालत। जैसे कहते हैं ना, क्या हाल चाल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या जुमला बनाया आपने? अच्छा, आपने यही जुमला बनाया था। अच्छा, दूसरा क्या लफ्ज है? इसका हम आवाज लफ्ज है दूसरा, हॉल। हॉल का मतलब होता है बड़ा सा कमरा। बिल्कुल सही है। और आपका जुमला क्या है? हमारे घर में एक बड़ा सा हॉल है जहां हम मिलकर खाना खाते हैं। भाई बहुत खूब, शाबाश। कुछ और अल्फाज भी हैं, जैसे आरी, अलिफ, मद और छोटी है। ये लकड़ी चीरने का एक औजार है, लकड़ी जिससे काटी जाती है। और इसका हम आवाज लफ्ज जो है आरी, जो कि आइन से शुरू होता है। आइन, अलिफ और रे छोटी है, जिसके मायने हैं खाली। जैसे इस छुट्टी के वक्त स्कूल बच्चों से आरी था, यानी बच्चों से खाली था, बच्चे नहीं थे वहाँ पे। इसी तरह हलाल, जिसका मतलब है जायज। इसके हिज्जे हैं जीम की फैमिली का है, अलिफ और लाम। इसका जुमला हो सकता है बकरे का गोश्त हलाल है। और इसका हम आवाज लफ्ज है हिलाल। इसके हिज्जे में गोल वाली है, लाम, अलिफ और लाम है। इसमें है के नीचे जेर है। पता है हिलाल किसे कहते हैं? हिलाल कहते हैं पहली तारीख के चांद को। हमारे परचम में, पाकिस्तान के परचम में हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा है। याद आया कुछ आपको? अपने परचम को गौर से देखिएगा। अब हम मुतशाबे अल्फाज यानी हम आवाज अल्फाज का एक और उसूल सीखेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है। इनमें वो अल्फाज शामिल होते हैं जिनके मायने तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन हिज्जे एक जैसे होते हैं। है ना दिलचस्प बात? अब इनमें फर्क कैसे तलाश करें? तो भाई, इसके लिए जरूरी है कि आप किताबें पढ़ें और जहाँ जुमले में ऐसा कोई लफ्ज आए तो जुमले के लिहाज से उसके मायने समझ जाएं। फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि कुछ बच्चे बात बात पे जिद करते हैं, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये उस बुरी आदत की बात हो रही है जिसे बड़े मना करते हैं। जिद करना बुरी बात होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ सर्दी की जिद क्या है, तो इसका मतलब है मैं इस लफ्ज का उलट या ऑपोजिट पूछ रही हूँ। वैसे सर्दी की जिद है क्या? बिल्कुल गर्मी। और आज वैसी गर्मी बहुत हो रही है। आइए ऐसे कुछ अल्फाज सीखते हैं जिनका इमला और आवाज बिल्कुल एक जैसी होती है लेकिन मायने मुख्तलिफ होते हैं। आप ये अल्फाज अपनी कॉपी में उतारें, गौर से सुनिए। दाम, इसके पहले मायने है कीमत। जुमला सुने, इस खिलौने के दाम बताएं। दूसरे मायने है जाल, यानी कि दाम के दूसरे मायने हैं जाल। तोता शिकारी के दाम में फंस गया। अब अगला लफ्ज लिखिए इत्तेफाक। इत्तेफाक, इत्तेफाक के पहले मायने हैं मिलजुल कर, यानी हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, इत्तेफाक में बहुत बरकत है। और इसके इसी इत्तेफाक के दूसरे मायने हैं अचानक से, यानी मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में इत्तेफाक से चचा मिल गए। इसी तरह तारीख, तारीख का एक मतलब है महीने का कोई दिन, आज कौन सी तारीख है। और दूसरा मतलब है हिस्ट्री, रिवायात, पुराने जमाने की बातें। मिसाल के तौर पे इसका जुमला बन सकता है पाकिस्तान की तारीख बहादुर फौजियों से भरी पड़ी है। तो अजीज बच्चों, ऐसे कई मुतशाबे या हम आवाज अल्फाज आपको अपनी किताबों में और बातचीत के दरमियान मिलेंगे जो अदा करने में एक सी आवाज देंगे लेकिन उनके मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसलिए उन्हें हम आवाज अल्फाज या मुतशाबे यानी मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं। चलिए जनाब, पढ़ाई तो काफी हो गई, अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जो है गीत संगीत। आज हम अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म बच्चे की दुआ सुनेंगे।
اور آپ بھی میرے ساتھ گائیے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونکی اور انہوں نے قائد اعظم کی رہنمائی میں پاکستان حاصل کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی، جن میں ایک پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، شہد کی مکھی اور بچوں کے لیے چند نصیحتیں وغیرہ شامل ہے۔ اب بھی علامہ اقبال کی نظمیں ذرا ڈھونڈ کے رکھیے گا۔ ہم پڑھتے ہیں بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میری اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دیکھا کتنی اچھی دعا علامہ اقبال نے ہمارے لیے لکھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو سب کو یہ دعا یاد ہوگی، کیونکہ میں تو بچپن سے اسے یاد کرتی آ رہی ہوں، اور اب میں دیکھتی ہوں بہت سارے بچوں کو یہ دعا یاد ہے نا؟ اچھی بات۔ چلیے ٹھیک ہے، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آج کا لفظ، اور آج کا لفظ ہے صفائی۔ ریپیٹ کریں، دہرائیں میرے ساتھ، صفائی۔ صفائی کا لفظ سنتے ہی پہلا خیال آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ نہانا؟ بالکل ٹھیک ہے، نہانا دھونا، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، شہر کی صفائی اور ملک کی صفائی۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یعنی اگر آپ صاف ستھرے رہیں تو آپ کا آدھا ایمان تو اسی طرح مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری دین کی بنیاد ہی پاکیزگی یعنی صفائی پر ہے، اور سچ بات ہے گندگی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جو بچے صاف ستھرے رہتے ہیں، روز نہاتے ہیں، اپنے ناخن تراش کے رکھتے ہیں، اچھی طرح بال بناتے ہیں اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، انہیں سب پسند کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کی ہر چیز سے صفائی اور سلیقہ نظر آتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ اس وقت ہمیں صفائی کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، اور 20 سیکنڈ میں آپ کو اپنے ہاتھ صابن سے خوب اچھی طرح دھونے ہیں۔ یہ بات تو اب آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صاف ستھرا انسان صحت مند ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ نہ صرف خود بیمار ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کو آپ کا بے چینی سے آپ کو انتظار رہتا ہے، جس کا سب لائن سے بیٹھ جائیں اور کہانی غور سے سنیں۔ کہانی ایک نیلا کوٹ کے حوالے سے ہے۔ میں آپ سے آخر میں کچھ سوال پوچھوں گی، غور سے سنیے۔ کہانی کا نام ہے نیلا کوٹ، اور اسے لکھا ہے فوزیہ سہیل اور سائمہ خالد نے۔ گڈو آج بہت خوش ہے۔ گڈو کی امی اس کے لیے ایک نیلا کوٹ لائی ہیں۔ گڈو نے امی کو شکریہ کہا، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے نیلا کوٹ اپنی الماری میں لٹکا دیا۔ نیلا کوٹ بھی آج بہت خوش ہے، اسے اپنا نیا گھر یعنی الماری بہت اچھی لگی۔
दूसरे दिन गुड्डू ने नीला कोट पहना। वो बहुत प्यारा लग रहा था। सबने उसकी तारीफ की। फिर गुड्डू ने खाना खाया। गुड्डू ने अपने हाथ नीले कोट पर साफ कर दिए, जिससे वो गंदा हो गया। नीले कोट को बहुत बुरा लगा। फिर गुड्डू अपने दोस्त के साथ गेंद से खेलने बाग में चला गया। गुड्डू ने गेंद पकड़ने के लिए बाग के जंगले से छलांग लगाई। नीला कोट जंगले में अटक के फट गया। नीला कोट दर्द से चीखने लगा। घर आकर गुड्डू ने नीला कोट उतारते हुए उसे जोर से खींचा। कोट के 2 बटन टूट गए। नीला कोट रोने लगा। गुड्डू की अम्मी ने नीला कोट देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने नीला कोट रगड़ रगड़ के धोया, सुई से उसके बटन भी लगाए। नीले कोट को बहुत तकलीफ हुई। गुड्डू की अम्मी ने गुड्डू को समझाया कि अपने कपड़ों को खराब और गंदा नहीं करते, उनका ख्याल रखते हैं। गुड्डू ने अम्मी से वादा किया कि वो आइंदा अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखेगा और उन्हें साफ सुथरा रखेगा। नीला कोट अब बहुत खुश है। गुड्डू उसका बहुत ख्याल रखता है। गुड्डू को भी नीला कोट बहुत पसंद है। कहानी अच्छी थी ना? अब आप इस सवाल को गौर से सुनें और इसका जवाब अपने घर में किसी बड़े को बताएं। पहला सवाल, गुड्डू ने नीले कोट के साथ क्या किया था? गुड्डू ने नीले कोट के साथ क्या किया था? दूसरा सवाल, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने क्या सीखा? सवाल नंबर 3, नीला कोट क्यों रो रहा था? नीला कोट क्यों रो रहा था? चलिए अब जल्दी से अपनी डायरी खोल लीजिए ताकि हम अपने अगले और आखिरी सेगमेंट की जानिब आएं, जो है हम भी कर सकते हैं। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, आज आपने मुतशाबे यानी हम आवाज अल्फाज सीखे। कम से कम 5 हम आवाज अल्फाज और उनके जुमले बनाएं। घर के बड़े उनकी रहनुमाई करें। मैं होमवर्क दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आप कम से कम 5 हम आवाज अल्फाज और उनके जुमले बनाएं और आप अपने घर के किसी बड़े से मदद ले सकते हैं। अब इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुदा आपकी, पाकिस्तान की और इस दुनिया की हिफाजत करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे। आज तो उर्दू पढ़ने में बहुत मजा आया। तो हादिया, आज हम क्या खेल रहे हैं? हमें नामचीज जगह खेले हुए बहुत अरसा हो गया है, क्यों ना हम वही खेल लें। ठीक है, देखते हैं इस बार कौन जीता है। लास्ट टाइम तो आप जीत ही गई थी। ठीक है नबीहा, आप एक हर्फ चुन लें। हम खेलते हैं ते से। और इस काम को मुकम्मल करने के लिए हम कुछ वक्त मुकर्रर करेंगे। तो हादिया बताएं, आपने ते से क्या लिखा है? मैंने ते से नाम तानिया, जगह ताजिकिस्तान और चीज तस्वीर लिखी है, और इस बार मुझे जानवर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, खैर है। मैंने ते से तजमीन, टर्की, तोता और तरबूज लिखा है। नबीहा, तोता ते से नहीं तोए से होता है। अरे मैं भूल गई थी। तो हम दोनों के बराबर नंबर आए। बिल्कुल। नबीहा, अब हम इंग्लिश में खेलें। ठीक है। हम एन से खेलते हैं। लेटर तो बहुत अच्छा है। नबीहा, एन से और कौन सा जानवर आता है? क्यों, आपने नहीं लिखा? मैं अगर आपको बता दूंगी तो आप जीत जाओगी हादिया। अच्छा, मैंने एन से नाजिया, नारान और नेल लिखा है, और एनिमल मुझे फिर नहीं आया। चलो कोई नहीं, मैंने एन से नबीहा, न्यूजीलैंड, नाइटिंगेल और नीडल यानी सोई लिखा है। तो यानी मैं जीत गई। अब हिसाब बराबर हो गया। लास्ट टाइम आप जीती थी, इस बार मैं जीत गई। कांग्रेचुलेशंस नबीहा। बच्चों, मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर ये खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो और जीतना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा हर्फ चुनें जो मुश्किल हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी इससे सारी चीजें आती हों। तो अब सुनते हैं अपने अगले कॉम्पोनेंट को, जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आओ जाने के साथ मैं हूँ रिदा और मैं हूँ असद। इस प्रोग्राम में हमारे 4 सेगमेंट्स होंगे। खट्टी मीठी कहानी, सोचो और बोलो, आज की बात और जिम्मेदार शहरी। चलें तो फिर बाकायदा आगाज करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, खट्टी मीठी कहानी। अली और उसके घर वाले कराची में रहते थे। अली को अपनी फुप्पो की शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाना था। अली के अब्बू परेशान थे कि वो अपने आबाई शहर कैसे पहुंचेंगे। उनकी बहन की शादी 3 दिन बाद थी। घर से बार बार फोन आ रहे थे।
क्या आप लोग निकले? आप लोग कहाँ पहुंचे? कब तक आएंगे आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अली के अब्बू के पास इन सवालात के कोई जवाबात नहीं थे, क्योंकि वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिर किस तरीके से सफर करें। उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए अपने 3 करीबी दोस्तों को बुलाया, जहाज भाई, ट्रेन बीबी और बस खाला। अली के अब्बू ने अपना मसला जब अपने दोस्तों को बयान किया तो एक अजीब सी बहस शुरू हो गई। अली के अब्बू ने उन्हें सब्र रखने के लिए कहा और चाय पीने की पेशकश की। तीनों दोस्त चाहते थे कि अली के अब्बू और उनकी फैमिली आखिर उनके साथ सफर करें। अली के अब्बू ने जब ये बताया कि उन्हें 3 दिन में लाजमी इस्लामाबाद पहुंचना है, तो बस खाला ने फौरन बोला, बेटा जी, अगर आप अभी निकलेंगे मेरे साथ तो अगले 24 घंटे में आप अपने शहर पहुंच ही जाएंगे। ये सुन के ट्रेन बीबी ने कहा, इतनी देर में तो मैं भी पहुंचा दूंगी। जहाज भाई बहुत तकब्बुर से बोले, इन दोनों से जल्दी तो मैं पहुंचा दूंगा, सिर्फ 2 घंटे में आप अपने शहर में होंगे। बस खाला ने बड़े इतरा कर जहाज भाई को बोला, जनाब, इतनी सी देर के लिए आप इतना सारा मुआवजा भी तो लेते हैं। इसका तो यही मतलब हुआ कि आप सिर्फ अमीर तबके को सहूलत देते हैं। अली के अब्बू अभी बस खाला की बात पे गौर फिक्र ही कर रहे थे कि ट्रेन बीबी ने अपना एक और फायदा गिनवा दिया। दोस्त, मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा आरामदेह सफर तुम मेरे साथ ही कर सकते हो। अगर तुम जहाज के साथ गए तो तुम्हें 2 घंटे सीधा बैठना पड़ेगा। बस की तो तुम बात ही ना करो, उसके लिए तो 24 घंटे कमर सीधी रख के बैठना पड़ेगा। मेरे साथ जाओगे तो आराम से बर्थ पे लेट के सफर कर सकते हो, थकन भी उतर जाएगी और सफर का पता भी नहीं चलेगा कब गुजर गया। इसके जवाब में कोई ठोस दलाइल ना होने पे जहाज भाई आग बगोला हो गए और ट्रेन बीबी और बस खाला से पूछने लगे कि कभी इतनी ऊंचाई पर गए हो? सब वहां से बहुत छोटा छोटा दिखता है, यहाँ तक कि जब तुम लोग चल भी रहे होते ना तो मुझे चुंडियों से लगते हो। इस पर ट्रेन बीबी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो जो भी जाता है उसे सिर्फ सफेद आसमान और बादल ही नजर आ रहे होते, तो सफर का क्या मजा। हमारे साथ आता है सफर का मजा। हमारे तो हर शहर में बड़े बड़े स्टेशन हैं जिसपे तुम उतर के उस शहर की सौगात खा सकते हो। इस पर अली के अब्बू बस खाला की तरफ मुड़े तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बात सुनो भाई, ट्रेन बीबी के तो स्टेशन शहर के बाहर होते हैं। मेरे साथ सफर करोगे तो हर शहर को अंदर से देखने का मौका मिलेगा। अब बताओ ट्रेन बीबी, मेरे साथ सफर में ज्यादा मजा आएगा या तुम्हारे साथ? जैसे ही ट्रेन बीबी ने अली के अब्बू का फैसला बस खाला के हक में होते हुए देखा तो उसने फौरन एक नुक्ता उठाया, आजकल मौसम का क्या भरोसा, और वैसे भी आजकल बारिशों का मौसम है। अगर बारिश हो गई तो क्या जहाज भाई और क्या बस खाला सफर करेंगे। बारिशों के दौरान तो सारी परवाजें मनसूख हो जाती हैं और रोड तो सारे इतने फिसलते हैं कि बस खाला के साथ सफर करना तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ये बोलना ही था कि अली के अब्बू ने अपनी नजरें जहाज भाई और बस खाला की तरफ घुमाई और क्या देखते हैं, दोनों नजरें झुकाए बैठे हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेन बीबी ने कहा कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, वो ना तो इतनी देर जहाज की और ना ही बस की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे साथ सफर करें। तो बच्चों, अगर आप अली के अब्बू की जगह होते तो आप किसके साथ सफर करना पसंद करते? जरा सोचिएगा। चलिए देखते हैं कि अली के अब्बू ने क्या फैसला किया। आखिरकार अली के अब्बू ने फैसला कर ही लिया। उन्होंने रेल बीबी के साथ सफर करने का फैसला किया, क्योंकि इस दफा अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए उनके पास वक्त था। पिछली दफा की तरह नहीं जब उन्होंने जहाज भाई के साथ सफर किया, क्योंकि उनको बहुत जल्द अपनी मंजिल पे पहुंचना था। अली के अब्बू का फैसला सुनकर बस हालत थोड़ी अफसुर्दा हुई, तो अली के अब्बू ने उन्हें तसल्ली दी कि आप फिक्र मत करें, अगली दफा हम आपके साथ जरूर सफर करेंगे। मौसम भी ठीक होगा और इंशाल्लाह बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे।
हमारा अगला सेगमेंट है आओ खेलें। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा। आपने मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सी चीज़ पटरी पे चलती है? ट्रेन यानी रेलगाड़ी या कार यानी गाड़ी? सही जवाब है ट्रेन, क्योंकि ट्रेन ही पटरी पे चलती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स किनको कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट्स उन्हें कहा जाता है जो कि स्पेस यानी खला में सफ़र करते हैं। अब ज़रा गौर से सोच के बताएं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस यानी खला में किस चीज़ पे जाते हैं? स्पेस शटल पे या हेलीकॉप्टर पे? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, एस्ट्रोनॉट खला में स्पेस शटल पे जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, इनमें से कौन सी चीज फिजाई सफर के लिए इस्तेमाल होती है? कार यानी गाड़ी या एयरप्लेन यानी हवाई जहाज? सही कहा आपने, एयरप्लेन्स यानी हवाई जहाज ही फिजाई सफर के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सी चीज पानी की सतह के नीचे चल सकती है? क्या वो किश्ती है या सबमरीन यानी समंदरी आबदोज? अरे वाह, बिल्कुल सही बताया आपने। सबमरीन यानी समंदरी आबदोज पानी की सतह के कई हजार फीट नीचे जा सकती है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? जी हाँ, मैंने पूछा है कि पाकिस्तान का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। क्या वो रावलपिंडी स्टेशन है या वो लाहौर स्टेशन है? सही बताया आपने, पाकिस्तान का सबसे पुराना स्टेशन लाहौर रेलवे स्टेशन है, जिसकी तामीर 1960 में मुकम्मल हुई थी। अब ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा एयरपोर्ट समंदरी सतह से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे मौजूद है? पाकिस्तान का कौन सा एयरपोर्ट समंदरी सतह से सबसे ऊंचाई पे मौजूद है? क्या वो स्कर्दू एयरपोर्ट है या वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है? सही बताया आपने, स्कर्दू एयरपोर्ट समंदरी सतह से सबसे ज्यादा ऊंचा है। स्कर्दू एयरपोर्ट की ऊंचाई 7,320 फीट है। उम्मीद है आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली किस्त में कुछ नए सवालात के साथ। अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज की बात। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक और तरीका है जिससे हम सफर कर सकते हैं? वो है पानी के जरिए। पानी के जरिए हम किश्ती और पानी के जहाज की मदद से सफर कर सकते हैं। ये सफर बनिस्बत आहिस्ता होता है, लेकिन मजा बहुत आता है। खुले आसमान के नीचे, खुले समंदर के बीचों बीच, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो और लहरों की आवाज। उफ, क्या बताऊं मैं आपको कि कितना मजा आता है। पाकिस्तान में पानी के जहाज से सफर नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में समंदर सिर्फ जुनूबी इलाका जात में है। बाकी शहरों में सफर करने के लिए हमें मुख्तलिफ सफर के तरीकों की मदद लेनी पड़ती है, जैसे ट्रेन, बस या एरोप्लेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में पानी के जहाज इस्तेमाल नहीं होते। पानी के जहाज पाकिस्तान में बंदरगाहों पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल करते हुए हम बड़े बड़े कंटेनर एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवा सकते हैं। ये बनिस्बत हवाई जहाज से सस्ता होता है और इसमें एक वक्त में हम बहुत ज्यादा सामान भिजवा सकते हैं। पाकिस्तान में 2 बंदरगाहें हैं जहां से तिजारत होती है, एक कराची में है और एक गवादर में है। पानी से सामान भिजवाने का एक नुकसान ये है कि पानी के जहाज सिर्फ उन ममालिक तक पहुंच सकते हैं जिनके पास समंदर मौजूद हो। जहां समंदर मौजूद नहीं है, वहां तिजारत करने के लिए हमें और मुख्तलिफ तरीकों की मदद लेनी पड़ती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि पानी के जहाज का इस्तेमाल हम तेल के बड़े बड़े बैरल्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी वो रास्ते में किसी भी वजह से पानी के अंदर गिर जाते हैं।
اس کی وجہ سے پانی بھی آلودہ ہوتا ہے اور پانی میں رہنے والے جانور بھی مر جاتے ہیں۔ پاکستانی نیوی پانی کے ذریعے ہمارے ملک کو دشمن سے محفوظ کرتی ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پانی کے ذریعے ہم پر کوئی حملہ نہ کر سکے، اسی لیے وہ الگ الگ قسم کے پانی کے جنگی جہاز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سب مرین پانی کے اندر جا کر دشمن پر حملہ کر سکتی ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ سفر کے اب چاروں طریقوں سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، ذمہ دار شہری۔ اس سیگمنٹ میں ہم سیکھیں گے کہ ایک شہری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف سواریوں کا استعمال تو کرتے ہی ہوں گے، جیسے کہ آپ گاڑی، موٹر سائیکل، بس، ریل گاڑی، جہاز اور پانی کے جہاز جیسی سواریوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کچھ نہ کچھ حفاظتی تدابیر کا بھی خاص خیال رکھا ہوگا، جیسے کہ گاڑی یا جہاز میں بیٹھنے پر سیٹ بیلٹ کا استعمال، موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال، اور ریل گاڑی یا پانی کے جہاز پہ چلتے ہوئے دروازے پر نہیں کھڑا ہونا۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی یہی علامت ہے کہ آپ ان ساری تدابیر پر عمل کریں اور اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی اس پر عمل کروائیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے آپ اور دوسرے لوگوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ بچوں، آپ روڈ پر جب بھی سائیکلنگ کریں تو ہیلمٹ اور حفاظتی آلات کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ اس سے آپ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں محفوظ رہیں گے۔ آپ کو ایک بات پر تو عمل کرنا پڑے گا بچوں، آپ کوشش کریں کہ آپ کسی رش والی جگہ پر سائیکلنگ نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کی بھی اور دوسرے لوگوں کی حفاظت کو بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ اپنے والدین یا کسی بھی بڑے کے ساتھ گاڑی یا موٹر بائک پہ سفر کر رہے ہو تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے، جیسے کہ سیٹ بیلٹ باندھیں، گاڑی تیز نہ چلائیں اور خاص طور پر ٹریفک اشارے کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ریل کے لیے کسی ریلوے اسٹیشن، بس کے لیے بس اسٹاپ، جہاز کے لیے کسی ایئرپورٹ اور پانی کے جہاز کے لیے کسی بندرگاہ پہ چڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنی باری کا ضرور انتظار کریں، کیونکہ اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ ٹریفک قوانین صرف سواری میں ہونے پر لاگو نہیں ہوتی آپ پر، بلکہ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تب بھی آپ کو ان ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہے۔ سب سے اہم، اگر آپ روڈ پہ کھڑے ہوں تو اپنے ساتھ جو بھی بڑا ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں۔ کوئی بھی روڈ پار کرتے ہوئے اپنے دائیں اور بائیں طرف ضرور دیکھیں اور روڈ پار کرتے وقت زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ برج کا استعمال کریں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان حفاظتی تدابیر پر عمل کریں گے، کیونکہ آپ اچھے بچے ہیں۔ تو چلیے آخر میں آپ کے لیے ایک دلچسپ سی بات۔ بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 40 سے زائد ایئرپورٹس ہیں؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کا شمار پاکستان کے بڑے ایئرپورٹس میں ہوتا ہے۔ ان ایئرپورٹس میں ہر روز کئی ملکی اور غیر ملکی پروازیں لینڈ اور ٹیک آف کرتی ہیں۔ بڑے ایئرپورٹس کے علاوہ کچھ چھوٹے ایئرپورٹس بھی ہیں جن کو زیادہ تر اندرونی پروازوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پاکستان کے پرانے ترین ایئرپورٹ میں سے ہے۔ یہاں ہر روز کئی ہزار لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی ہزار ٹن ایئر کارگو بھی آتا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کا ایک حصہ صرف کارگو کے لیے مختص ہے۔ یہاں پر ایئرپلین سے لایا سامان کو محفوظ طریقے سے سٹور کیا جاتا ہے اور وقت آنے پر اپنی منزل کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہوائی جہاز اور ایئرپورٹس اچھی معیشت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ امید ہے بچوں آپ نے آج کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویسے ہادیہ، if you have to go تو آپ کس موڈ میں ٹریول کرنا پسند کریں گی؟ اگر کم وقت ہو اور ٹکٹ کے لیے پیسے بھی ہوں تو جہاز سے جاؤں گی، ورنہ ٹرین اور بس بھی دونوں ٹریول کے بہت انٹرسٹنگ موڈز ہیں۔ واقعی سارے ٹریولنگ موڈز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔